डेटा अनालिटिक्स शिकण्यासाठी तुम्ही इथे लाईक वी आर स्टार्टिंग दिस कोर्स ऑर डेटा अनालिटिक्स शिकण्यासाठी तुम्ही हे सगळं क्लास वगैरे करताय. होप इफ आय एम नॉट रॉंग, राईट? येस, नो? ओके, एक्सलंट. Let me open some additional files. Okay, so let me share some details and then maybe we can go over a few things. Okay, दिसतंय सगळ्यांना स्क्रीन? I right? सगळ्यांना स्क्रीन दिसतंय? There is a PDF open. लोड होत आहेत. ओके, आता दिसत असेल, राईट? येस, नो? ओके, चलो. ऑनलाईन स्क्रीन दिसतंय सगळ्यांना? नो फीडबॅक? ओके, थँक यू. तुषार, अजय. ओके, चलो. सो विल स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन. आपण इंट्रोडक्शन पासून सुरू करू अँड देन विल कंटिन्यू वन बाय वन, राईट? तर आय विल गिव्ह माय इंट्रोडक्शन आणि मग नंतर तुम्ही इंट्रोड्यूस करा. मतलब पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन, राइट? Before moving, maybe quickly I want to understand the demographic. How many of you are fresher? How many of you are experienced? Yes. Those who are fresh can type F in the chat. Experienced people can type E in the chat. Okay. Clear? Okay. इथे ऑफलाईन मध्ये फ्रेशर्स का सगळे? ओके. ओके. सो ओके, आय सी लॉट ऑफ एफ फ्रेशर्स. ओके. ओके. ओके, दॅट्स नाईस. दॅट्स नाईस. तर मोस्टली सगळेजण फ्रेशर्स आहेत, राईट? सो जस्ट टू गिव्ह यू द बॅकग्राऊंड, तुम्ही इथे डेटा अनालिटिक्स शिकण्यासाठी आलाय. होप दॅट इज क्लिअर. अँड डेटा अनालिटिक्स इज इट कन्सिस्ट ऑफ लॉट ऑफ टेक्नॉलॉजीज. म्हणजे असं नाही की फक्त इट्स नथिंग ॲज अ सेम ॲज जावा डेव्हलपर. जावा डेव्हलपमेंटमध्ये कसं तुम्हाला जावा आलं अँड देन यू कॅन स्टार्ट लर्निंग फ्यू things, right? So that is not the case. Data analytics has multiple technologies. Okay, the most basic four technologies आहेत जे तुम्ही शिकणार आहे. लाइक फोर टेक्नोलॉजीज जो आप सीखने वाले हो: एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई and python. Clear? So these are the four technologies you are going to learn. And why I'm saying different technologies, अलग अलग टेक्नोलॉजीज क्यों सीखनी पड़ती है? बिकॉज डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी. जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी और वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ अ डेटा और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ डेटा इंक्रीजेस, some tools are not sufficient. For example, Excel. The large volume of data के लिए Excel is not sufficient, or Excel cannot handle. So that's why you use some other tools: Power BI, SQL, Python, right? So this is how you use. So hope you guys are clear with what I am discussing. Okay, not an issue. We'll go slow, step by step. We'll cover an introduction. So I will introduce myself, and then you have to introduce. Okay. So my name is Kapil Kargi. It's been 6 years in the industry, mostly data analytics related field. Uh, Specialization is in supply chain, logistics, warehouse management, inventory management. Most of you might have heard something, right? So related to that, I work, but with the data analytics. So currently, I'm working as a data scientist. It's been around 1.5 years.
So here with the Phoenix Group, Phoenix, not the mall, but the different Phoenix company. Okay, and little bit about education. I completed engineering, same as many of you, from College of Engineering, Pune. So, College of Engineering, hope you might have heard, right? So, it's been 2015, and then I worked in the government as well as private company. मतलब 2015 के बाद प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनी में मैंने काम किया है. ओके. And apart from this, here with the data analytics teaching, I guess this is seventh or eighth batch. Okay, so आपका सात or okay more than 10 I guess Excel. Python still few batches are pending. So by and large 10 plus batches cover किया है मैंने यहाँ पे. Okay, clear. So with my introduction, maybe I can take couple of you guys. तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं. विल कीप इट अ सिंपल. ऐसा नहीं कि लाइक आपको पूरा एक्सप्लेन करना है. नेम और व्हाई यू वांट टू डेटा एनालिटिक्स. आपको डेटा एनालिटिक्स क्यों करना है विद इन 2 लाइन्स, बिकॉज आई सी लॉट ऑफ पीपल आर देयर. सबका इफ यू टेक लॉट ऑफ टाइम इट विल बी बिट डिफिकल्ट. सो शॉर्ट, आपका नाम और क्यों डेटा एनालिटिक्स करना है आपको. ओके, सो मे वी विल स्टार्ट विद द ऑनलाइन. चलो, हु विल स्टार्ट? साइली, श्लोक, प्रसाद, रोहित, शिव प्रसाद. यस, कोमल, हर्ष. Those who are joined for the first time, maybe उनका ही आप हम like we'll have an introduction. For others it's not an issue. Yes, Akib. Okay. Okay, thank you, Akib. Next time, hopefully you join from some class because we see a lot of vehicles outside. Okay. 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 Chalo. Next. Who is next? Okay, Shiv. Maybe you can start and then Girish. Yeah. आपका आवाज नहीं आ रहा है. Yes. Now it is clear. हाँ, बोलिए. Yes. 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 You are audible. Okay, sir. Okay. So, sir, just I'm looking for working. So, I'm looking for the analytics course Okay. So you are looking for data analytics course, but why you want to do data analytics? because sir, I'm interested to data role because everything is now available on cloud and every company is have data. So that's it's a for future purpose. Okay. Okay, that's nice. Yes, you are rightly said. Everything is related to data. Yes. Yeah. Next, who would like to go? चलो क्विकली, इतना टाइम नहीं है. ओके, ऑफलाइन. ऑफलाइन में कौन? आप शुरू कर दीजिए. तुमचा झाला का बॅच? ओके. येस. तुमचं इंट्रोडक्शन. तुम्ही फर्स्ट टाइम आहे की? ओके, इंट्रोडक्शन द्या. यू कॅन स्टार्ट विथ युअर इंट्रोडक्शन. My name is Rodia Kansha. I from Srivanda. I have completed my bachelor degree in this college. Mm-hmm. Okay, and why you want to pursue data analytics? Data analytics क्यों करना है? Okay. Okay. Yes. My name is Dr. Pooja.
Mm-hmm. I'm from Sri Lanka. My degree completed in Maharashtra University. Mm-hmm. I am interested to solve query in data. Mm-hmm. Data analysis. Okay. Okay, that's nice. Yes. Hello, good evening. Good evening, everyone. My name is Mr. Bode. I am from Kola. I just completed my BE degree from Information Technology from Sant Galigaon Amravati University. Mm-hmm. And I like to analyze the large set of data and finding the useful data from that. Okay, and why you want to analyze? I like to analyze because I want to minimize the data, the large set of data available on internet, analyze them and finding the useful data for us. Okay, I rightly said finding insights from the large data set, that is nothing but a main role of data analytics. Okay. Yes, good. Chalo. Next. Mm-hmm. I am recently graduated and from Ramnike College of Engineering and Management. I Mm-hmm. have done my graduation in Computer Science and Engineering. To enter the data field in Mm-hmm. data science, the first step is data analytics as a Okay. fresher. Okay. So I am doing the data analytics course. Mhm. To Okay, enter yeah. in data field. Yes. So absolutely many people said that they want to summarize or they want to find insights or they want to join IT field, right? So somebody rightly mentioned it is just a start. Data analytics is one of the starting point in the IT, right? So I am very curious. See, there are many things you might have heard. Recently आप लोग देख रहे होगे AI, data science, बहुत कुछ चल रहा है, right? So anyone knows what is data analytics, what is data science, data engineering वगैरह सुना होगा तो वो term, right? So what are these? क्या इनका मतलब सेम है और इसका कुछ अलग मीनिंग है? Yes. Totally different. Okay, okay. So can anyone tell me the difference? चलो we'll start with one by one. Data analytics मतलब क्या ये बताइए. आप लोग data analytics कर रहे Data, हो? Okay. data, Okay. And data science? अगर ट्रेन ट्रेन करने एल्गोरिथम सेट किए जाते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से. Okay. Okay. Yeah, almost. But I need more specific, more concise. मतलब थोड़ा लेमैन को समझ आए ऐसा कुछ. Yes. तो जैसे डेटा एनालिस्ट सो वेरी सिंपल टर्म में बताइए डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स दोनों में क्या डिफरेंस है और डेटा इंजीनियरिंग इफ यू नो उसमें क्या डिफरेंस है. यस. डेटा साइंटिस्ट इंसाइट्स को अप्लाई करता है ओके. और डेटा एनालिस्ट उस एनालाइज करते हैं. ओके, स्क्रीनिंग एंड एनालाइज एंड डेटा साइंस इंसाइट्स जनरेट करता है. ओके. ओके. एंड डेटा इंजीनियर एनीवन नोज व्हाट डज डेटा इंजीनियर डू और ऐसा कुछ फील्ड होता है क्या और इट जस्ट मतलब ऐसे रैंडमली बनाया है. यस. हाँ सर, हमको लगता है डेटा इंजीनियर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए यूज किया जाता है. ओके. ओके. Okay, okay, not an issue. Mostly not infrastructure, but data pipeline बोलते हैं उसको. इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्वर वगैरह बिल्ड करना, आपको लैपटॉप वगैरह देना, लैपटॉप में सेटअप करना, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्टली पीपल कॉल. बट ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स आपको सिंपल वर्ड में बताना है. डेटा एनालिस्ट इज द पर्सन हु डील्स विद द पास्ट डेटा. पास्ट मतलब जो कुछ हुआ है उसके बारे में जो एनालाइज एनालाइज करता है और उस डेटा से रिलेटेड जो भी काम है जो पर्सन करता है दैट इज अ डेटा एनालिस्ट. पास्ट मतलब क्या है. सपोज आपने यू आर डीमार्ट का डेटा है आपके पास. ओके, डीमार्ट का डीमार्ट जैसा आपका शॉप है. ओके.
यू आर मतलब कोई छोटे सिटी में डीमार्ट जैसा एक शॉप है सुपर मार्केट वाला, तो आप ट्रांजैक्शन को देख रहे हो हर रोज कितना सामान जा रहा है, कितना आ रहा है। ओके, लास्ट ईयर में कितना हो गया, कितना मैंने प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हो गया, कौन से प्रोडक्ट का ज्यादा प्रॉफिट है, कौन से प्रोडक्ट का कम प्रॉफिट है, कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया, बिका ही नहीं। सो ये सारी चीजें एनालाइज करना इज नथिंग बट अ डेटा एनालिसिस, क्योंकि ये पास्ट में हुआ है, सब कुछ हो गया है राइट। लास्ट ईयर आप जो भी हुआ है, नॉट ओनली लास्ट ईयर बट लास्ट 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, जितना डेटा आपके पास है वो आप एनालाइज कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट डेटा एनालिसिस। सो सेम केस अप्लाइज विद एवरीथिंग, वट एवर हैज हैपेंड, मतलब पास्ट में जो कुछ हुआ है उसके बेसिस पे आप एनालाइज कर रहे हो, और उसको एनालाइज करना मत, दैट इज नथिंग बट डेटा एनालिसिस। क्लियर? देन व्हाट इज डेटा साइंस? सो द पर्सन हु डील्स विथ फ्यूचर, ओके, डेटा का फ्यूचर वो देखता है और वो प्रिडिक्ट करता है, दैट इज नथिंग बट डेटा साइंस। ओके, और वो कैसे करेगा, ही माइट, वो कैसे होगा फिर, प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट कैसे करेगा? मे बी मशीन लर्निंग आपने सुना होगा, एआई सुना होगा, राइट, स्टैटिस्टिक्स है। तो ये तीन चार चीजें को कंबाइन करके ही विल ट्राई टू जनरेट द प्रिडिक्शंस, मतलब प्रिडिक्ट करेगा, फोरकास्ट करेगा। आपके एग्जाम्पल में देखा जाए तो मान लीजिए आपका जो स्टोर्स है 3-4 साल से आप यूज है, वो स्टोर के ओनर, तो कल मैं आके आपको बोलूंगा कि नेक्स्ट ईयर आपका सेल कितना होगा, मैं ये बता सकता हूँ आज, और कौन से महीने में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा ये भी बता सकता हूँ। सो व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट प्रिडिक्शन। तो ये कौन करता है? डेटा साइंटिस्ट, राइट। मे बी दिवाली के टाइम पे आपको पता है, दिवाली के टाइम पे शुगर, ऑयल, कुकिंग ऑयल, इनका सेल बढ़ेगा, राइट। कितना बढ़ेगा वो भी बता सकते हैं। लास्ट ईयर मे बी 100 लीटर्स वगैरह गया होगा, तो इस साल 110 जाएगा, और नहीं तो 90 होगा। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन जो आप प्रिडिक्ट करोगे आगे जाके, दैट इज नथिंग बट डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा साइंटिस्ट ये लोग प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग, फ्यूचर रिलेटेड सब कुछ चीजें हैंडल करते हैं। क्लियर? अंडरस्टूड? डेटा इंजीनियर, फिर देर इज समथिंग कॉल्ड डेटा इंजीनियर एज वेल। ओके, सो जो आप लोग ये हैंडल कर रहे हो, प्रिडिक्ट पास्ट का डेटा, फ्यूचर का डेटा, बट आपको क्या लगता है आपका डेटा किसी के लैपटॉप में रहेगा, किसी के कंप्यूटर में रहेगा, या किसी एक्सेल फाइल में होगा? कहाँ पे रहेगा? जो 4 साल का आपका डेटा है, राइट, 4 साल आप एज अ ओनर काम कर रहे हो, एज अ ओनर हो एक स्टोर्स के, तो कहाँ पे रहेगा डेटा? किसी रजिस्टर पे? इट विल बी समवेयर ऑन द क्लाउड, मतलब ऑनलाइन। एज इन एग्जाम्पल आपको देना है तो गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव आप स्टोर करते हो ना डेटा आपका, और कहीं पे भी गूगल के अकाउंट का लॉगिन करके आप एक्सेस करते हो। वैसे ही बड़े बड़े कंपनीज क्या करते हैं, उनका डेटा ऑनलाइन स्टोर करते हैं। नथिंग बट जैसे आपको गूगल ड्राइव पता है, वैसे ही ऑनलाइन सर्विसेज है कॉल्ड AWS, अमेजॉन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। ये क्या करते हैं, जैसे गूगल ड्राइव रहता है वैसे सेम आपको स्टोरेज देते हैं ऑनलाइन, तो वहां पे सारे बड़े बड़े कंपनीज उनका डेटा स्टोर करते हैं, सो दैट डेटा एनालिस्ट हो, डेटा साइंस हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि कंपनी में एक या दो ही एनालिस्ट है, बहुत सारे रहते हैं, राइट। मे बी आपके टीम में ही 4-5 एनालिस्ट रहेंगे, ऐसे बहुत सारे टीम्स रहेंगे, और सब लोगों को पास्ट का डेटा एक्सेस करना है, राइट। सो इसीलिए ये सारा डेटा ऑनलाइन रहेगा। तो ये डेटा का जो पाइपलाइन है, मतलब ऑनलाइन डेटा स्टोर करना, कुछ उसमें क्लीनिंग करना है तो डेटा क्लीन करना, और प्रॉपर फॉर्मेट करके आपको डेटा लेके देना, दैट इज द वर्क ऑफ डेटा इंजीनियर। ओके, क्लियर? सो व्हाट इज द डिफरेंस? एंड देन देर आर फ्यू डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस वाले अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी एज इन दे यूज मोर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उनका काम मोस्टली स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड रहता है। एंड देन पाइथन, और पाइथन में आगे जाके लाइब्रेरीज है, मशीन लर्निंग, टेंसर फ्लो,
scikit-learn, right? Pandas. So that is what data scientists do. और जैसे आपको पता ही है, विदाउट नोइंग द पास्ट फ्यूचर आप डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या? यस। ज्योतिषी के पास भी जब जाते हो आप, तो आप डायरेक्टली वो फ्यूचर बताता है क्या? वो क्या करता है, पहले पास्ट देखता है आपका, जो भी है, कुंडली है, आपका हाथ है, वट एवर द टेक्निक ही यूजेस, देन ही स्टार्ट्स प्रिडिक्टिंग, राइट? सो सेम केस विद द डेटा। डेटा साइंटिस्ट बनना है तो कहाँ से शुरुआत होगा जर्नी? Past data you need to understand, so nothing but data analyst, right? So इसीलिए if you observe data science के fresher related post बहुत कम होते हैं, okay? So it's not advised to go directly data scientist or be data scientist. जनरली जर्नी शुरुआत होता है डेटा एनालिटिक्स से। डेटा एनालिटिक्स में 2-3 साल काम करो एंड देन यू स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स एंड स्विच करना है, राइट? क्लियर एवरीवन? सॉरी, आज थोड़ा वो, आई कैन अंडरस्टैंड, एनिवर्सरी के लिए देर इज सम रिनोवेशन गोइंग ऑन, सो मे बी ऐसा डिस्टरबेंस हर रोज नहीं रहता। क्लियर सबको व्हाट इज डिफरेंस? डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर क्या होता है? आप किस में काम करोगे? आप डेटा साइंटिस्ट बनना है, एनालिस्ट बनना है, ये क्लियर सबको? Then next, let's start with data analyst technologies. मतलब कौन से टेक्नोलॉजीज आपको आना चाहिए so that you can start working on your skills. First and foremost, Excel, right? Excel आपको आना ही चाहिए, because हर एक कंपनी में किसी कोई भी डेटा आपको डील करना है तो एक्सेल इज द गो टू टूल। मतलब इजीली अवेलेबल है, सबको पता है एक्सेल, आपने यूज भी किया है। क्लिक करने से, मतलब ऐसा कोड वगैरह नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली आप क्लिक करते हो, राइट? आपको सब कुछ अवेलेबल है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू हैंडल। दैट्स व्हाई वी स्टार्ट विथ एक्सेल। तो इसलिए हम एक्सेल सीखते हैं। देन यू स्लोली मूव टॉवर्ड्स पावर बीआई, नहीं तो एसक्यूएल। पावर बीआई थोड़ा एडवांस वर्जन है ऑफ एक्सेल। आप जब एक्सेल करोगे एंड देन पावर बीआई करोगे, आपको रियलाइज होगा कि ऑलमोस्ट 50% ऑप्शन सेम है। सब ऑप्शन ऊपर वाले टैब है, टैब के अंदर जो जो ऑप्शन है सब कुछ सेम है, सिर्फ उसके एडवांटेज अलग है। दैट इज अ पावर, और दैट इज पावर यूजर के लिए रहता है, और उसको बिजनेस बिजनेस इंटेलिजेंस टूल बोलते हैं, बीआई टूल, और विजुअलाइजेशन टूल, जिसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आप कर सकते हो। ओके, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आपको, मान लीजिए, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आपको ट्रेंड एनालाइज करना है। आपके पास आपका जो भी स्टोर है, डीमार्ट जैसा, लास्ट 5 ईयर से आप उसको ऑपरेट कर रहे हो, बट आपको ढूंढना है पर्टिकुलर, टेक एग्जांपल ऑफ जेमिनी, जेमिनी कुकिंग ऑयल का कितना सेल हो रहा है, आपको निकालना है। नंबर नहीं निकालना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नंबर्स, मुझे ट्रेंड चाहिए। ट्रेंड मतलब जेमिनी का सेल साल साल बढ़ते जा रहा है कि वो घटते जा रहा है, एज इन सेल ऑफ जेमिनी कुकिंग ऑयल, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये हमें देखना है। इसका मुझे क्या एडवांटेज होगा? नेक्स्ट ईयर जब भी मैं प्रिडिक्ट करूंगा, मान लीजिए आप आपको लग रहा है, मतलब आप ट्रेंड एनालाइज कर रहे हो कि फर्स्ट ईयर आपने कुछ 120 लीटर बेचा था, देन उसके बाद 140 हो गया, फिर 150 हो गया, लास्ट ईयर फिर आपने 180 बेचा 4 साल में, राइट? तो यू कैन क्लियरली सी द पैटर्न, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, नेक्स्ट ईयर प्रिडिक्ट करना है तो वो 180 से ऊपर ही रहेगा, कितना भी रहे, 190, 200, बट दिस इज व्हाट अ ट्रेंड। तो ये सारी चीजें विजुअलाइज करना है आपको। ओनली बाय लुकिंग एट अ नंबर इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट आपको ग्राफिकल वे में देखना है। सो दैट टाइम व्हाट यू यूज, पावर बीआई, because that is very efficient. So that's why you start learning with power BI. Then comes with SQL.
एसक्यूएल इज नथिंग बट डेटाबेस मैनेजमेंट का काम करता है वो, क्योंकि आप जो भी डेटा हैंडल करोगे, ऐसा नहीं होगा कि वो 10 लाख मतलब एक फाइल में रहेगा, शीट में रहेगा, वर्ड फाइल में रहेगा, राइट? दैट इज नॉट द केस. सो इट विल बी समवेयर ऑन द क्लाउड. जैसे हमने बोला आपको, आप अभी जैसे गूगल ड्राइव वगैरह यूज करते हो, सिमिलरली डेटा क्या रहेगा? क्लाउड पे. बट क्लाउड से डेटा आपको पास कैसे आएगा? सो यू नीड टू हैव समथिंग राइट इन बिटवीन. और ऐसा नहीं कि डेटा इंजीनियर ने बना के रखा है डेटा, तो सारा डेटा आप यूज करोगे. नॉट नेसेसरीली आप यूज करोगे. मान लीजिए आपके, टेक एन एग्जांपल में भी डी मार्ट का वगैरह और रिलायंस मार्ट का. इंडिया में ऐसे रिलायंस मार्ट कितने हैं? 100-200 प्लस है, राइट? रीजन वाइज है, नॉर्थ में कुछ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. देन जियो जैसे बड़े कंपनी में, रिलायंस में रीजन वाइज एनालिसिस होता है, एनालिस्ट रहता है जो एनालिस्ट नॉर्थ रीजन का देखते हैं. सो दैट टाइम आपको सिर्फ नॉर्थ रीजन का डेटा कलेक्ट करना आना चाहिए ना. पूरे इंडिया का लेके क्या करोगे आप? आपका तो काम है ही नहीं. सो ये जो मैनिपुलेशन का है डेटा, और डेटा जितना रिक्वायर्ड चाहिए उतना ही कलेक्ट करना है, ये कैसे पॉसिबल है? बाय यूजिंग एसक्यूएल. आप एसक्यूएल की क्वेरी रन करते हो, जितना डेटा चाहिए उतना ही डेटा आप पावर बीआई में लेके आते हो, एंड देन यू स्टार्ट एनालाइजिंग, राइट? सो दैट्स व्हाई यू नीड एसक्यूएल एज वेल. और एसक्यूएल बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बोला डेटा कितना, मतलब आप लोग डेटा में करियर कर रहे हो, सेम वे इतना ज्यादा डेटा जनरेट होता है हर रोज. तो जो भी पावर बी है और जो भी यूजर है, उनको खुद का डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए खुद का क्वेरी लिखना पड़ता है. ओके, सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसक्यूएल वगैरह. इफ यू और डोंट बिलीव, आप गूगल में जाके देख सकते हो. आप गूगल इतना ट्रैक करता है, आपके हर एक सेकंड का डेटा गूगल के पास है. कौन सा ऐप आपने कब ओपन किया, कितने टाइम ओपन किया, सारा डेटा अवेलेबल है. आप देख भी सकते हो, history.google.com. इस पे जाइए, आपका फोन का पूरा यूसेज आपको पता चलेगा. गूगल के पास कितना है, कौन सा ऐप ओपन किया, कितने बजे ओपन किया, कितने टैब्स आपने ओपन किया, किसका प्रोफाइल चेक किया, फेसबुक पे कितना टाइम स्पेंड किया आपने, सब कुछ. और आप इजीली देख भी सकते हो. यू कैन चेक, गूगल करो history.google.com, आपको पूरा आपका हिस्ट्री पता चलेगा, गूगल कितना स्टोर करता है. तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आप कुछ भी बात कर रहे हो तो उसका रिलेटेड ऐड दिखता है आपको, राइट? आपने बोला आइसक्रीम खाना है, तो डायरेक्टली आइसक्रीम रिलेटेड एड्स आएंगे आपको. वाई? बिकॉज गूगल कलेक्ट करता है डेटा, वो सब कुछ, एंड देन एडवर्टाइज और आइसक्रीम बेचने वाले कंपनी को सजेस्ट करता है, हाँ दिस यूजर, पर्टिकुलर यूजर नीड्स आइसक्रीम, तो वो लोग आपको ऐड दिखाते हैं. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. क्लियर? So all these are nothing but applications of data analytics. Real world applications है ये. ओके. और इफ यू ऑब्जर्व कि बैंक में आपका बैलेंस कम हो तो क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो, ऐसे फोन आते हैं, राइट? बिकॉज दे अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट. उनको पता है आपका स्पेंड हो रहा है 10,000, आपके अकाउंट में है 5,000, तो दे विल फोर्स यू, क्रेडिट कार्ड, लोन वगैरह फोर्स करेंगे. So these are the real world applications, right? Then we come to the point कि Python क्यों लगता है, right? मान लीजिए there are some cases where आपका डेटा, you cannot even use Excel, और Power BI में कभी कभी फेल हो जाता है, इतना बड़ा डेटा होता है. That time you use Python. लार्ज स्केल एप्लीकेशन, लार्ज स्केल ऑटोमेशन के लिए Python वगैरह यूज होता है, राइट? हर सेकंड आपका डेटा जनरेट हो रहा है, मान लीजिए उसे एनालाइज करना है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा? डेफिनेटली पावर बीआई आल्सो विल फेल एट द सम पॉइंट. सो दैट्स व्हाई यू यूज डेडिकेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन वगैरह. क्लियर एवरीवन? सो दैट्स व्हाई इट विल बी आवर कोर्स में भी हमें यही सिखाया जाएगा, एसक्यूएल, पावर बीआई, एसक्यूएल एंड पाइथन. सो सबको समझ में आया कि क्या सीखना है, क्यों सीखना है, what are you going to learn and why are you going to learn.
all these technologies. Clear? सबको समझ में आ रहा है? श्लोक, शिव प्रसाद, विकास, Yes, योगेश, दीपक, अंकिता, अक्षय, राइट? ओके, गुड. सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सेल देन. हम एक्सेल पढ़ने वाले हैं, राइट? वी हैव मेट हियर टू लर्न एक्सेल. तो वाई एक्सेल? क्योंकि एक्सेल सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड और जनरलाइज्ड है. मतलब कोई भी टूल, कोई भी आप कंपनी में जाइए, विदाउट एक्सेल काम नहीं होगा. बीट फाइनेंस, बीट सप्लाई चेन, बीट ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, कोई भी फील्ड में जाइए, आपको एक्सेल के बिना काम नहीं होगा. ओके, दैट्स व्हाई वी विल स्टार्ट लर्निंग एक्सेल. और फंडामेंटली देखा जाए, एज इन सबसे पहले लोगों ने डेटा एनालिसिस एक्सेल ही यूज करके किया था. देर वर नो सच स्पेशलाइज टूल्स, राइट? ये तो बाद में आया सब कुछ. सो विल फॉलो द ट्रेंड. हम एक्सेल को पढ़ेंगे एंड देन विल स्टार्ट लर्निंग स्पेशलाइज टूल्स. तो एक्सेल इज कॉल्ड अ जनरलाइज टूल्स. जनरलाइज क्यों? क्योंकि जो भी आप टेक्नोलॉजी आप पढ़ने वाले हो आगे जाके, पावर बी आई, एसक्यूएल, पाइथन, सब कुछ एक्सेल में होता है. मान लीजिए आपको जैसे हमने एग्जांपल देखा, एसक्यूएल में सिर्फ नॉर्थ का डेटा हमें फेच करना है. एक्सेल में वो भी फैसिलिटी है, आप फिल्टर वगैरह यूज कर सकते हो. फिल्टर करके आप नॉर्थ का डेटा निकाल सकते हो, राइट? जैसे पावर बीआई में ग्राफ वगैरह अच्छे से बनता है, ट्रेंड आप निकाल सकते हो. तो सेम वे एक्सेल में भी आप ग्राफ बना सकते हो, एक्सेल में भी ट्रेंड बना सकते हो, राइट? देन पाइथन, पाइथन में आप जो प्रोग्रामिंग करते हो, कोडिंग करते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन एक्सेल. एक्सेल में भी देर इज समथिंग कॉल्ड वीबीए, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, राइट? सो देन व्हाई वी आर लर्निंग स्पेशलाइज? सिर्फ एक्सेल ही हम पढ़ते हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ते. इज दिस पॉसिबल? और ऐसा क्यों करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पर यदि रियल वर्ल्ड में कंपनी है जो मतलब प्रोडक्ट यूज कर रही है, तो मतलब मेरे को भी वही प्रोग्राम और टूल्स यूज करना चाहिए, सीखना चाहिए. ओके, ओके, बट देर इज वन प्रॉब्लम विथ एक्सेल. एक्सेल का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. क्या? वो सिर्फ लिमिटेड डेटा ही हैंडल करता है. और कितना लिमिटेड? एनीवन हैज एनी आइडिया एक्सेल में कितने रोज होते हैं? लेट मी ओपन द फाइल एंड देन शो यू. भाई, तो सबको पता है ना एक्सेल फाइल कैसे करना है, एक्सेल कैसे ओपन करते हैं? यू कैन इधर सर्च, विंडोज प्रेस करके EXCEL एक्सेल, ये हमारा एप्लीकेशन है, राइट? जस्ट अ सेकेंड. क्लियर? एक्सेल वगैरह आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, EXCEL. ये देखिए, दिस इज हाउ यू विल गेट द एक्सेल एप्लीकेशन. यहाँ से आप ओपन कर सकते हो. क्लियर? और राइट क्लिक करके न्यू, राइट क्लिक कहीं पे भी राइट क्लिक कीजिए एंड देन आपको न्यू ऑप्शन करके आएगा, न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. यहाँ पे दिख रहा है ना, न्यू. क्लियर? सो ये हमने फाइल किया है यहाँ पे क्रिएट. विल ओपन इट. ओके, ये हो गया एक्सेल एप्लीकेशन. ये ऐसे दिखता है, मे बी यू कैन ऑब्जर्व. ये देखिए, ऊपर ऐसे कुछ ऑप्शंस है. ओके, दीज आर नथिंग बट टैब. इनको बोलेंगे टैब. होम टैब, पेज लेआउट, इंसर्ट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, फाइल, राइट? और ये हो गया वर्क स्पेस, जहाँ पे एक्सेल हम यूज करेंगे.
क्लियर? एंड होम टैब में बहुत सारे और टैब में अलग अलग ऑप्शन है, आप देख रहे होंगे, देखिए है ना, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ऑल दिस डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल। वैसे ही पेज लेआउट में पेज रिलेटेड, मतलब ये देखिए A3, A4, A5 साइज, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, बैकग्राउंड चेंज करना है, वैसे आपको प्रिंटिंग रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे पेज में। इंसर्ट में क्या होगा, सम प्योर टेबल टेबल, ये हम ऑप्शन देखने वाले। चार्ट जो मैं आपको बता रहा था, आप पावर बीआई यूज करके भी कर सकते हो, एक्सेल यूज करके भी कर सकते हो, देखिए यहाँ पे है ना। फॉर्मूलाज में अलग अलग फॉर्मूला, जो भी आप फॉर्मूला यूज करोगे, दैट वी विल यूज इट हियर। बाय द वे ट्रेडिशनली एक्सेल फॉर्मूला के लिए यूज होता है, मतलब कैलकुलेशन फॉर्मूला। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम एक फॉर्मूला सिर्फ डे वन पे पढ़ेंगे, बाकी सब कुछ जो एक्सेल में अवेलेबल है उससे ही काम करेंगे। वी विल नॉट यूज एनी फॉर्मूला, फॉर्मूला वगैरह रट्टा नहीं मारना है ना। डेटा एनालिटिक्स के परस्पेक्टिव से जो भी एक्सेल में है, हम मैक्सिमम उसका यूटिलाइज करेंगे। क्लियर? देन डेटा डेटा देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, जैसे मैं बता रहा था क्लाउड वगैरह ना, ये देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। गेट डेटा, ये देखिए ये क्लाउड का ऑप्शन है, इंटरनेट वगैरह। क्लिक, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, मतलब अज्योर से आप यूज कर सकते हो। अज्योर इज नथिंग बट एसक्यूएल, ये देखिए, पता चला अभी एसक्यूएल क्यों सीखना है, राइट? यहाँ पे भी सेम ऑप्शन आपको पावर बीआई में भी दिखेंगे। फ्रॉम फाइल्स, अलग अलग फाइल्स है, राइट? ऑनलाइन सोर्स है, अलग अलग ऑनलाइन सोर्स से भी आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, क्योंकि कंपनी में जनरली इसमें लिमिटेड स्कोप होता है, पावर बीआई में देर इज लॉट मोर यू कैन डू। ओके, कहाँ थे हम? वाई एक्सेल इज कॉल्ड अ जनरलाइज टूल्स। पहले तो सब कुछ आप कर सकते हो, यहाँ पे देखा आपने, चार्ट बना सकते हो, डेटा फेच कर सकते हो, एसक्यूएल का क्वेरी वगैरह रन कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, फोरकास्टिंग जो मैं बोल रहा था, हिस्ट्री, फ्यूचर, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है फोरकास्टिंग, तो डेटा साइंस का भी काम कर सकते हो, राइट? सो एवरीथिंग इज अवेलेबल जो आप आगे जाके पढ़ने वाले हो। ओनली कंसर्न इज ये सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस है। क्यों? देखिए, दिस इज अ डिस्ट्रैक्टिंग, राइट? इसको बंद भी कर सकते हैं। ओके, सो देर इज अ लिमिटेशन ऑफ एक्सेल। सबसे बड़ा लिमिटेशन कौन सा है? शिफ्ट, आई एम प्रेसिंग कंट्रोल एंड डाउन एरो, ये देखिए सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है। व्हाट इज द नंबर? 10,48,500 sort of. So this is what the limitation is. सिर्फ 10 लाख रोज ही आप ऐड कर सकते हो। रियल वर्ल्ड में इतना ही रहेगा क्या डेटा? नो, राइट? मान लीजिए आपके केस में आपने पिछले 5 साल का डेटा आपका लिया है, तो 5 साल के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए हर रोज कितने का सेल होता है आपको। मान लीजिए आपने 20 कस्टमर आते हैं हर रोज आपके शॉप में, 20, 20 × 30, एक महीने का हुआ। 30 × 365, एक साल का, 1 ईयर का हुआ। एंड इंटू 5, 5 साल का। तो सबका मल्टीप्लीकेशन करके डेफिनेटली इट विल गो अबोव 10 लाख, राइट? और मोर मे बी, आपने जैसे ईयर 10 साल का ले लिया तो इट मे गो मोर देन दैट। सो इन दैट केस एक्सेल कैन नॉट हैंडल सच डेटा, दैट्स वाई आप लोग पावर बीआई यूज कर सकते हो। ओके, मान लीजिए आपने सिर्फ ट्रांजैक्शन यूज किया है, आपको फाइनेंस का डेटा ऐड करना है, मतलब कितना खर्चा हुआ, आपने कहीं से लोन लिया है तो लोन, उसका ईएमआई, राइट? वो भी आपको मर्ज करना है आपके डेटा के साथ। देन अगेन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो ऑल दिस कॉम्प्लिकेशंस कैन बी हैंडल्ड इजीली इन एक्सेल, सॉरी पावर बीआई। सो दैट्स व्हाई एक सर्टन पॉइंट के आगे आप लोग पावर बीआई यूज करते हो, यू कैन नॉट यूज एक्सेल। एक्सेल इज कॉल्ड अ जनरलाइज टूल्स। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ होता है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता,
सो इसीलिए जनरलाइज है। बाकी टूल्स स्पेशलाइज बोलते हैं क्योंकि वो स्पेशल काम के लिए यूज होता है। एसक्यूएल डेटा एक्सट्रैक्शन, पावर बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस, मतलब केपीआई बनाना, रिलेशनशिप बिल्ड करना, विजुअलाइज करना, ऑल दोस थिंग्स, राइट। पाइथन हाई लेवल डेटा हैंडलिंग, कोडिंग उसके लिए यूज होता है। वेब स्क्रैपिंग, राइट, क्लियर। और आगे जाके आप पाइथन के लाइब्रेरीज पढ़ोगे, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, वो इतने दोज आर वेरी फास्ट कि वॉट एवर कैलकुलेशन आप, एक तो एक्सेल हैंग हो जाता है और वो कैलकुलेशन नमपाई पांडास कैन डू इन सेकेंड्स। 10 सेकेंड 20 सेकेंड में डेटा 10 लाख 20 लाख रोज हैंडल होता है नमपाई में। विद इन 10 सेकेंड्स आपके सारे कैलकुलेशंस होते हैं। एक्सेल विल फेल। ये 10 लाख तो सिर्फ दिखाने के लिए है, 1 लाख के ऊपर ही फेल होता है। इफ यू डोंट बिलीव, प्रोजेक्ट फोल्डर आप चेक कीजिए, गूगल ड्राइव का लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। देर इज प्रोजेक्ट फोल्डर, आपको जो प्रोजेक्ट करना है उसका डेटा ऑलरेडी उस ड्राइव में है, और उसमें एक फाइल है विच कंसिस्ट 1 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड्स है उसमें। तो वो फाइल ओपन करने के लिए आपको 5 मिनट लगेगा। आपका कंप्यूटर अच्छा है तो, पुराना है तो वो हैंग हो जाएगा डायरेक्टली 1 लाख रोज के ऊपर। सो 10 लाख इज नॉट द लिमिट। लिमिट बहुत कम है, बट वो सिर्फ दिखाने के लिए है। क्लियर। सो वाई वी आर, व्हाट इज द डिफरेंट जनरलाइज्ड स्पेशलाइज्ड टूल्स, उनके बीच डिफरेंस। देन वन मोर पॉइंट, इतना हम जो कर रहे हैं डेटा एनालिसिस, वो जो पास्ट फ्यूचर डेटा साइंस, बट एक्चुअल काम क्या रहता है डेटा एनालिस्ट का? किसी को कुछ आइडिया है? आपने बोला सर एनालिसिस करना है पास्ट डेटा का, ठीक है, तो उसका आपको पैसा मिलेगा क्या एनालिसिस करने का? यस। आपको जो भी डेटा एनालिस्ट जॉब मिलेगा, आप क्या, So, आपका काम क्या रहेगा, क्यों सैलरी देना, सिर्फ एनालिसिस का सैलरी देना है आपको? यस। रॉ डेटा को बराबर करेंगे, रॉ डेटा को, सॉरी, आई डेंट गेट। प्रॉपर मैनर में लाने के लिए ओके, मतलब डेटा क्लीनिंग के लिए। हाँ डेटा क्लीनिंग। ओके, उसके लिए पैसा मिलता है? मतलब ऐसा जॉब है तो to मुझे भी to बताइए find फिर। that and to grow business. यस यस एब्सोल्युटली, हु इज दिस? हाँ, टू ग्रो द बिजनेस, राइट। मतलब बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको पैसा दे सकते हैं, चलो। मतलब मेरा सेल्स था 1,000 रुपए, 10 लाख रुपए का सेल था, आपने 12 लाख किया, तो 2 लाख में से 10,000 आपका, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। और ये ग्रो कैसे होगा? यस, ग्रो कैसे होगा? अदर्स, किसका पैसा मिलता है? आपने इतना सब biggest कुछ बोला, डेटा एनालिसिस, ये आपको sir, डेटा एनालिसिस करना है, राइट। हाँ, सॉरी आई मिस्ड। बिगेस्ट डेटा पर सर, मतलब मीनिंगफुल इंसाइट्स लेकर सारे प्रेडिक्शन लगा के बिजनेस किस तरह ग्रो करेगा, क्या प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे, सबमिट करना। यस यस एब्सोल्युटली शिव, एग्जैक्टली। ओके, उन्होंने जो बताया मैं आपको रिपीट करता हूँ। तो उन्होंने क्या बोला कि हमें डेटा पहले तो एनालिसिस करना ही है, एंड देन हमें इंसाइट्स निकालना है। इंसाइट्स मतलब हमें बिजनेस ओनर को सजेस्ट करना है कि सुनो भाई, तुम्हारा जेमिनी का जो कुकिंग ऑयल है, ये 5 साल से हम देख रहे का बेच नहीं रहे इतना ज्यादा, तो एक काम करो, इसको बंद करो, जो जेमिनी कुकिंग ऑयल खरीदना बंद करो नेक्स्ट ईयर से। उससे बजाय एक काम करो, आप वट एवर ब्रांड, आई फॉरगॉट, कोई भी दूसरे ब्रांड का कुकिंग ऑयल ले लो क्योंकि वो ज्यादा बेच रहा है। ये हो गया इंसाइट्स एंड एक्शंस। तो इससे क्या होगा कि बिजनेस बढ़ेगा, एंड देन यू विल गेट योर मनी, राइट। और आप बोल सकते हो कि सी बॉस, वट एवर सम एक्स वाई जेड पार्ट, एक्स वाई जेड मटेरियल आपका बेच नहीं रहा है, उसे पूरा बंद करो, बेचना ही बंद करो,
क्योंकि खरीद के रखोगे वो खराब हो जाएगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा। नहीं तो एक काम करो, आप देख रहे हो कि एक्स वाई जेड पार्ट आपने खरीदा था, मान लीजिए मोबाइल कवर्स, और वट मोबाइल कवर्स आपने खरीदा है और बहुत ज्यादा बिक नहीं रहा है, तो एक काम करो, इस पे 50% डिस्काउंट दे दो। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी, राइट? मतलब बेच नहीं रहे हैं इसीलिए वो रख के वैसे भी लॉस हो जाएगा, इससे अच्छा 50% पे बेच दो, जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। सो ये कौन बनाता है स्ट्रेटेजी? नहीं तो एक काम करो, बिग बिलियन डे आ रहा है, 30% डिस्काउंट दे दो, 50 दे दो, 60 दे दो, और नहीं तो 1 घंटे के लिए 60 दे दो, बाद में 30 कर दो। या हु इज डिसाइडिंग दिस नंबर्स? ये नंबर्स कौन डिसाइड कर रहा है? स्ट्रेटेजी कौन बना रहा है और क्यों बना रहा है? यस, ऑनलाइन, दोज हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन, क्यों बना रहा है, कौन बना रहा है, हु इज डूइंग ऑल दिस वर्क? दिस इज नथिंग To generate more profit. यस। तो हम ये क्यों कर रहे हैं? बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, राइट? सब लोग उसी के लिए बिजनेस करते हैं ना, या कोई लॉस में जाने के लिए करता है? नहीं, राइट, टू ग्रो द बिजनेस। तो ये सारे जो स्ट्रेटेजीज है, आपको सेल, बिग बिलियन डे सेल है, डिस्काउंट 30 दे दो, 40 दे दो, बट बोलो कि 2000 के ऊपर ही 40 लगेगा, नहीं तो 3 के बाद ही 40 लगेगा। सो दिस इज नथिंग बट अ वर्क ऑफ डेटा एनालिस्ट। तो ये सारे जो इनसाइट्स है, पैटर्न्स है, ये सब ढूंढना इज नथिंग बट अ वर्क ऑफ डेटा एनालिस्ट। सो इसको ही बोलते इंसाइट्स। इंसाइट्स निकालना मतलब क्या हुआ है, पास्ट में आपने देखा कि मेरे सारे कस्टमर सिर्फ 1000 रुपए का ही शॉपिंग कर रहे हैं, ओके, ये हो गया इंसाइट। और एक्शन क्या होगा? नहीं, मुझे प्रॉफिटेबल बनाना है, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा कि कस्टमर को फोर्स करना पड़ेगा कि 1500 का खरीदो। तो आप क्या करोगे? एक्शन। एक्शन इज गिव देम 20% डिस्काउंट ऑन मिनिमम परचेस ऑफ 1500, क्योंकि आपको पता है 1500 का तो, 1000 रुपए का तो खरीद रहा है कोई ना कोई, तो लोग डिस्काउंट देख के 500 का और परचेस करेंगे, राइट? सो ये हो गया एक्शन। इनसाइट्स मतलब जो आप पास्ट डेटा को एनालाइज करके समरी बना रहे हो उसका 2 या 3 सेंटेंस में। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज, लास्ट ईयर का आपका परचेस 20 लाख रुपए है, लास्ट ईयर का आपका सेल 20 लाख रुपए है, ये हो गया इनसाइट। लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट 10,000 रुपए है, ये हो गया इनसाइट। क्योंकि आप जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, मान लीजिए थ्रू आउट द ईयर हर रोज कुछ ना कुछ बेच रहे हो, 365 डेज में देर विल बी मेनी ट्रांजैक्शंस, लैक्स एंड लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस रहेंगे, राइट? तो हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर कितना प्रॉफिट होता है, उसको कंबाइन करके बताना, ये भी बहुत बड़ी बात है। एज अ बिजनेस ओनर, आप किराना शॉप रन करते हो, ओके, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा इस महीना कितना प्रॉफिट हुआ? एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा क्या? अनलेस एंड अनटिल कोई आपको कंबाइन, कंसोलिडेट करके बताए, तभी तक बताए नहीं रहेगा। सो दिस इज नथिंग बट इनसाइट्स। तो बॉटम लाइन ये है, आपको इनसाइट्स एंड एक्शन, इनसाइट जनरेशन एंड एक्शन सजेस्ट करने का पैसा मिलता है। आपको डेटा क्लीनिंग का नहीं मिलेगा, डेटा फॉर्मेटिंग का नहीं मिलेगा, ना आपने कहीं एसक्यूएल का क्वेरी रन करके एक्सेल में भरने का नहीं मिलेगा। बी वेरी क्लियर, आपका काम क्या है ये समझिए पहले। देन इंसाइट्स जनरेट करना, एक्शंस, इंसाइट्स एंड एक्शंस, ये आपका काम है। देन ये काम करने के लिए आपको पूरे एक प्रोसेस फॉलो करना है, स्टेप्स। तो वो स्टेप क्या है? वी स्टार्ट विद डेटा अंडरस्टैंडिंग, पहले तो अंडरस्टैंड कीजिए डेटा क्या है। देन स्टार्ट विद डेटा फॉर्मेटिंग, देन क्विक इंसाइट्स, देन डेटा समराइजेशन, देन डेटा विजुअलाइजेशन, देन ऑटोमेशन। तो दीज आर द 6 स्टेप्स, प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको इजीली इंसाइट भी निकलेगा, एक्शंस भी निकलेंगे। अंडरस्टूड? ऑनलाइन जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं, सबको समझ में आया?
सो जस्ट टू समराइज, Yes, sir. हमने क्या क्या सीखा आज. सो वी स्टार्टेड विथ व्हाट इज डेटा एनालिसिस, difference between data analysis, data science, data engineering, right? देन हमने देखा कि आप डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिटिक्स में कौन से टेक्नोलॉजी सीखोगे, विच आर एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई एंड पाइथन, राइट? नॉट ओनली दिस, ये क्यों सीखना है ये भी हमने देखा. हर एक का यूज केस. एक्सेल इज जनरलाइज टूल, अदर टूल्स आर स्पेशलाइज. एक्सेल के लिमिटेशंस, 10 लाख डेटा है सिर्फ, राइट? ऑल दिस थिंग्स वी लर्न. देन वी स्टार्टेड विथ व्हाट इज डेटा एनालिसिस. डेटा एनालिसिस क्या होता है, एज अ डेटा एनालिस्ट आपका जॉब क्या रहेगा, ये हमने देखा. एंड कंक्लूजन ये हुआ कि आपको इंसाइट्स एंड एक्शंस, ये दोनों जनरेट करने का पैसा मिलेगा, राइट? So you will be paid to come up with insights and suggest actions. जो भी आप सजेस्ट करोगे, आप बोलोगे सर बिजनेस कम हो रहा है, 50 लोगों को फायर करो, बिजनेस बढ़ेगा ना, पैसा बढ़े बचेगा, सेल्स सैलरी वगैरह 50 लोगों का. दैट इज वन ऑफ द मेथड. हु विल सजेस्ट? एनालिस्ट विल सजेस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस ग्रो करना है ना. सो यू हैव टू सजेस्ट ऑल दिस थिंग्स. इससे पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, बिजनेस इज मेकिंग लॉस, तो हमारा बिजनेस लॉस मेकिंग है, ये हो गया इनसाइट. लोगों को फायर करो, ये हो गया एक्शंस. क्लियर? तो फिर आप अभी, आप लोग सोच सकते हो कि आपको डिसीजन लेना है फायर करने का, या वो लिस्ट 50 लोगों के लिस्ट में आना है. सो इट्स ऑन यू, है ना? आपके जैसे ही एनालिस्ट ने सजेस्ट किया होगा कंपनी को, इतना फायर करो इतना सेव होता है, इसको फायर करो इतना सेव होता है ना? ओके, सो होप यू गाइस आर क्लियर. एंड यहाँ से आगे हम थोड़ा टेक्निकल पढ़ते हैं, विच इज एक्सेल. एक्सेल में सबसे बेसिक एलिमेंट है सेल. इसको क्या बोलते हैं? सेल. और इस सेल का एड्रेस यहाँ पे होता है. ये बहुत कॉम्प्लिकेट, बहुत बड़ा नंबर है. लेट्स गो एट द टॉप, शिफ्ट अप एरो. देखिए, इस सेल को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे एड्रेस आ रहा है. एड्रेस इज नथिंग बट बी और नो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. तो बी इज नथिंग बट कॉलम. ये ऊपर वाले जो है इनको कॉलम बोलेंगे, और ये जो है इनको रो बोलेंगे, राइट? जैसे आपके घर को एड्रेस होता है सम ब्लॉक, नगर, राइट, वॉट एवर इट इज. सो सेम वे एक्सेल में हर एक सेल को एड्रेस होता है. कोई भी आप सेल सिलेक्ट करो रैंडमली. ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ N63, N इज नथिंग बट कॉलम, 63 इज नथिंग बट रो. ये देखिए यहाँ पे, राइट? और ये क्लियर. एंड देन इसके आगे हम स्लोली वी स्टार्ट लर्निंग द प्रोसेस. फर्स्ट वी स्टार्ट विथ फॉर्मूलाज, बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह, सम, काउंट, एवरेज, इफ, आपको पता ही है. एंड देन वी स्टार्ट विथ डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, क्विक इंसाइट्स एंड डेटा समराइजेशन, पिवट टेबल. देर इज अ वन प्रोसेस, डेटा कंसोलिडेशन भी है आगे जाके, एंड देन पिवट टेबल. सो दोज हु हैव ज्वाइंड इन बिटवीन, मतलब जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम, सो होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग जो आज सिखाया है. और यहाँ से आगे हमने ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे. यू कंप्लीट विद इन 1 or 2 days, ओके? एंड नेक्स्ट डे से यू कैन कंटिन्यू विद दिस करंट बैच. डेटा समराइजेशन तक हुआ है, वो हम देखेंगे वहां से आगे. पिवट टेबल, ओके? क्लियर एवरीवन, दोज हु हैव ज्वाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम, जो लोगों का पहला दिन है आज, समझ में आ रहा है सबको? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है, दिख रहा है सबको? निकिता, माधुरी, कुंजीर, कृष्णा, कोमल, दीपक,
ओके, समझ में आया सबको क्या है करना आपको, व्हाट इज प्रोसेस, हाउ यू स्टार्ट, क्या क्या करना है, कौन सा एनालिसिस है, कौन सा टेक्नोलॉजी है, साइंस क्या है, एनालिटिक्स क्या है. ओके, सो यस देन, सो विद दिस मे बी वी कैन टेक अ ब्रेक हियर. सो आगे के डिटेल्स आपको मोस्टली ग्रुप में मिलेंगे. एंड एज यू नो वी आर प्लानिंग फॉर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन 29th का है, राइट? सो मोस्टली विल मीट ऑन एंड ऑफ, मतलब एक दो दिन मीट करेंगे इस वीक में, बट विल सी, ऑल द इंफॉर्मेशन आई विल शेयर इन द ग्रुप. ग्रुप में हर रोज सुबह आपको समझ में आएगा कि वेदर वी आर गोइंग, मतलब आगे का कब क्लास करना है. बट दोज हु हैव ज्वाइंड लेट, जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं और आज ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी लिंक मिल जाएंगे. आप लोग कांटेक्ट कीजिए काउंसलर से वगैरह, वो आपको लिंक शेयर कर देंगे. ओके, यू कंप्लीट एंड देन विल स्टार्ट. आई गेस 4 और 5 लेक्चर्स हुए हैं, अनदर 4 लेक्चर्स आर पेंडिंग. ओके, क्लियर एवरीवन? समझ में आया सबको? डज एनीवन हैज एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है क्या, मतलब लेक्चर देखा है फिर भी समझ नहीं आया, ऐसा कुछ है? किसी का है ऐसा डाउट, सर वो लेक्चर 1 देखा है बट उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है? यस, ऑनलाइन. हेलो सर। यस यस सर्वेश. कल से रेगुलर लेक्चर होगा क्या? कल से यस होगा रेगुलर, बट हमारा इवेंट है तो इवेंट के प्रिपरेशन में मे बी विल हैव 1 और 2 days ब्रेक. ओके। होप 29th को सब लोग आ रहे हैं. आई गेस देयर इज अ सुधा में, पता है क्या सबको ये रील? हाँ। अथर्व सुधा में डैनी पंडित, दोज पीपल आर कमिंग. इवेंट के लिए वो लोग आ रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट. सो होप आपको फिर वो फोटो वगैरह इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो उनके साथ फोटो खींच के, इफ यू आर फैन, रील स्टार वगैरह, है ना? सो 29th इज द डे. 29th को वो लोग आ रहे हैं, सो मे बी होपफुली यू विल ऑल्सो कम, क्योंकि आपके ग्रुप में सबसे कम वोटिंग हुआ है. 11 लोग आ रहे हैं ना DA 14 से. सबसे ज्यादा स्टूडेंट आप ही के बैच में और सबसे कम आप ही के बैच से आ रहे हैं. ओके, ओके, देख, प्लान अकॉर्डिंगली, बट प्लीज मेक श्योर यू पार्टिसिपेट. उसके बाद रिजॉर्ट में भी जाना है एंड देन देयर विल बी फन गेम्स एंड ऑल. ओके, क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? सो डिटेल्स आपको शेयर ग्रुप में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के. ओके, थैंक यू देन. यस, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो देन मे बी वी कैन कंटिन्यू. बोलिए मैडम. ओके, आपको क्वेश्चन नहीं है तो आप निकल सकते हैं, नॉट एन इशू. क्या समझ नहीं आया? ओके, हाँ हाँ, नहीं आज समझ में आया ना. ठीक है, यहाँ से आगे आप वापस घर जाके देखिए तो यू विल गेट आइडिया कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग. इनसाइट्स क्या है, एक्शंस क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, डेटा फॉर्मेटिंग. ओके, ओके. नाही, VLOOKUPचा परत एकदा फॉर्म्युला बघा. डेटा कन्सॉलिडेशनसाठी आपण ते वापरतो, राईट? तर VLOOKUP तुम्हाला थोडं प्रॅक्टिस पण करायला लागेल. अँड काय असेल तर आपण परत कनेक्ट करू सेपरेट VLOOKUP साठी. ओके, सर हां. आम्ही किती लेक्चर्स मागे आहे? 4, 4 लेक्चर. तर तुम्हाला तर ही बॅच जर कंटिन्यू केली तर आम्हाला हे होईल, कारण की ते 4 लेक्चर. नाही, तुम्ही व्हिडिओ बघू शकता 4 लेक्चरचा. एक लेट अस सी, एक काम करूया, तुम्ही व्हिडिओ बघा. ओके, अँड अटेंड द नेक्स्ट लेक्चर. पुढचं लेक्चर पण अटेंड करा. जर नाहीच कळालं देन मे बी वी कॅन मीट सेपरेटली. आपण सेपरेटली कनेक्ट करू शकतो अँड देन वी कॅन डिस्कस.
येस सर. येणार आहेत ना, आहेत असतील. ओके, काही क्वेश्चन अजून? ओके, बोला. हॅलो. हा सर, तुम्हाला पर्सनली कॉन्टॅक्ट करू शकतो का? हो, चालेल ना. तुम्ही ग्रुपमध्ये असाल तर ग्रुपमध्ये मी आहे ऑलरेडी अवेलेबल, तर तुम्ही मला त्यात ते मेसेज करू एक्सेल मध्ये शकता. प्रॉब्लेम येते सर. तुम्हाला मध्ये अवेलेबल नाही करून देत आणि फील्ड मागत आहे त्याच्यामध्ये. येस, येस. मग तुम्हाला ते लायसन्स खरेदी करायला लागेल. तुम्ही मला मेसेज करा, आय विल शेअर यू द डिटेल्स. ओके ओके सर. तुम्हाला थँक्यू. काय प्रॉब्लेम आहे ना ते मेसेजमध्ये टाका. फक्त हाय हॅलो नका करू, बिकॉज आय डोंट, खूप सारे मेसेजेस येतात, सो आय मे नॉट बी रिप्लाइंग ऑन टाइम, बट जेव्हा मला वेळ मिळेल मी तेव्हा रिप्लाय करेन, है ना? ओके ओके. ओके, अजून कोणाला क्वेश्चन? रेकॉर्डेड लेक्चर ड्राईव्हर हो, आहेत. शेअर करा. लिंक ते ग्रुपमध्ये असेल, DA14च्या ग्रुपमध्ये आहे ना तुम्ही? हां, आय गेस ग्रुपमध्ये ऑलरेडी मी परत शेअर केलेलं आहे. येस, आत्ता. ठीक आहे. सो थँक यू, थँक्स अ लॉट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कनेक्ट, नॉट एन इशू. आप लोग डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए, विल डिस्कस. ओके, थँक यू, थँक्स अ लॉट. चलो बाय. हे पण लेक्चर मी अपलोड करतोय बाय द वे गुगलवरती, अँड देन मे बी आप रेफर कर सकते.